Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and I hope you are doing well at home. So today I am here to give you a lecture on geography basically. So what's our world? Today what we are going to learn is world geography. Our chapter is all about world's geography. So we'll tell you how to look at the map, how to look at the sphere of the earth. First of all, today what I'm going to tell you is about map. First of all, let me tell you what the map is. You know, the earth is a sphere. Look at this thing. This is a sphere. So it's not an easy thing. It's not an easy task to define in a map form, in a flat form, because it's all round, as you can see. It's in a sphere form. So why we need maps? We need maps to draw it in a flat form. Plus we can calculate the things which are present in this world. So for that we need maps. Where are the mountains, where are the hills, where are the other countries in this world. So in relation to that we use map system. So we basically have three kind of map. First is physical map, then we have a political map, and then we have a relief map. What the physical map is? Physical map basically, in this map it shows where the hills are, where the rivers are, where the valleys are, where the landforms are, what kind of landforms are used. This all comes in a physical map. So in a physical map, if you look at this picture specifically, so in Punjab, it's normally a land, a fertile land. But if you go to NWFP and FATA, then you see a lot of hills. So this basically, this map, if you can Google it at your home as well, in that what you are going to differentiate is कि physical map के अंदर आपके पास होता क्या है. बलोचिस्तान का अगर एरिया देखेंगे, if you look at this thing, बलोचिस्तान वाला एरिया, तो इसमें सारे hills यानी rocks type material जो है वो आपको मैप के अंदर नजर आएगा. What does that mean? कि वो सारे के सारे rocks जो है वो describe इस चीज को कर रहे होंगे, mountains को कर रहे होंगे. लेकिन mountains भी, there are different types of mountains are present in this world. So in one country, I am typically talking about physical map of Pakistan, because आपको ये understand करना जो है वो easy हो जाएगा. तो इसमें क्या है, इसमें पंजाब में फर्टाइल लैंड है, तो यहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई रॉक्स, कोई भी इस तरह का मटेरियल जो है वो नजर नहीं आएगा. बट इफ यू लुक एट दिस NWFP, तो यहाँ पर जो रॉक्स हैं, यहाँ पर टोटल ये जो रॉक्स बनी है, दैट मीन्स कि इट्स ऑल अबाउट माउंटेन्स. NWFP में सारे माउंटेन्स हैं, बलोचिस्तान में सारे माउंटेन्स हैं. इफ यू गो टुवर्ड्स सिंध, तो यहाँ पर आपको जो है वो क्या नजर आएगा, यहाँ पर आपको समंदर का जो है वो एक पोर्शन भी नजर आएगा. एंड साथ आपको क्या नजर आ रहा है, इसमें देयर आर लॉट ऑफ लैंड विच इज are not fertile, और इसमें हेमिस्फीयर्स का भी जो है वो फर्क होता है. आई टेल यू लेटर इन दैट. Second is used map is called a political map. ये second type है map की. Political map, why we use political map? Because if we don't use political map, we won't be able to find out what cities are present in this country, where the locations are. तो इन सब locations को सभी countries को world map के अंदर और एक कंट्री के अंदर डिफरेंट सिटीज को डिफाइन करने के लिए व्हाट वी यूज टर्म पॉलिटिकल मैप. तो पॉलिटिकल मैप के जरिए से आपको सारी स्ट्रीट्स, सारी जो है वो सिटीज, इवन योर प्रोविंसेस, ऑल दिस कम्स अंडर अ पॉलिटिकल मैप. प्लस आपको पता है, यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग आइडिया अबाउट दिस कि पाकिस्तान और इंडिया, दे आर टू कंट्रीज. सो इनके दरमियान में क्या है, देयर इज अ बॉर्डर लाइन. सो पॉलिटिकल मैप बेसिकली किसी भी कंट्री की बॉर्डर लाइन को फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपको पता है कि अगर आप अपनी जगह से दूसरी जगह जाएंगे, फॉर दैट यू नीड परमिशन चाहिए होती है. व्हाई? बिकॉज हमारी जो पॉलिटिकल मैप के अंदर जो बाउंड्री लाइन है, हम वो विदाउट परमिशन जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते. सो पॉलिटिकल मैप ऑफ एनी कंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाई? बिकॉज इसमें आपको जो है वो अपनी हदूद, अपना एरिया, अपने मुल्क का एरिया, वो सारी चीजें जो है वो पता चलती है. इफ यू लुक एट दिस थिंग, दिस इज द बलोचिस्तान, ये प्रोविंस है, ठीक है. दिस इज द अरेबियन सी, जो कि आपको सिंध के साथ, कराची के साथ जो है वो आपको लगता हुआ नजर आता है. दिस इज इवन सी के अंदर भी वी हैव अ सर्टेन बाउंड्री लाइन. देन देयर इज अ सिंध, और इसके बाद यहाँ पे देयर इज अ पंजाब, एंड ये खैबर पख्तूनख्वा, जिसको आप NWFP भी जो है वो बोलते हो. व्हाई? इसमें क्या है कि इसमें सारे के सारे, जैसे ये मीरपुर खास, दिस इज आल्सो सिटी ऑफ सिंध. एंड इफ यू लुक एट द पंजाब, साहिवाल, झांग, चनियोट, ये सब क्या है, ये सब सिटीज हैं. इन सब सिटीज को
कौन सा मैप हमें बताएगा, पॉलिटिकल मैप जो है वो हमें इसको डिस्क्राइब करेगा। व्हेनेवर वी हैव टू लुक एट द लोकेशन, व्हेनेवर वी वांट टू नो द हाउ मेनी सिटीज आर प्रेजेंट इन दिस कंट्री, तो हम उसके लिए क्या मैप यूज करेंगे, पॉलिटिकल मैप यूज करेंगे। बट इफ वी हैव टू फर्दर मोर, हम रिलीफ मैप जो है वो एक यूज करते हैं। थर्ड टर्म हमारे पास मैप की क्या आती है, रिलीफ मैप। अब इसको रिलीफ मैप क्यों कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर जितने भी हिल्स हैं, जितने भी वैलीज हैं, जितने भी रिवर्स हैं या फिर सी है, ये सब क्या आपको हॉरिजॉन्टल और लाइंस के अंदर जो है वो दिखाया जाता है। उसकी रीजन क्या होती है, सो दैट यू नो कि इसके अंदर कितनी जो है वो किस किस्म की यानी कि जो है वो नहरें हैं, व्हाट काइंड ऑफ रिवर्स आर देयर, व्हाट काइंड ऑफ माउंटेन्स आर देयर, उस सब के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, रिलीफ मैप यूज कर रहे हैं। इफ यू लुक एट दिस थिंग, तो आप इसके ऊपर देखोगे ये जो है वो सर्टेन एरिया, इसको जो किया गया है, ये वाला एरिया जो है दैट इज फॉर अरेबियन सी। इसमें क्या है, ये समंदर का एरिया है, ठीक है। यहाँ पर देयर इज नो की प्रेजेंट, बट इस पे हर मैप के अंदर देयर इज अ की। अब की का मतलब क्या होता है, की का मतलब ये होता है कि यू हैव सीन दिस काइंड ऑफ स्टफ, आइदर वो डॉट की फॉर्म में होता है, आइदर वो जो है वो इस तरह की फॉर्म में होता है, ठीक है। एंड देन आइदर इट कुड बी अ ट्रायंगल। इन सब चीजों से क्या होता है, ये सारी चीजें आपको की का मतलब क्या होता है, डिफरेंट कलर्स में होती हैं, विच शोज इन द मैप। द कलर्स यूज्ड इन द मैप इज आल्सो यूज्ड एज द कीज। व्हाई, उससे आपको पता चलता है कि समंदर किस जगह पर है। हिल्स अगर दिए हैं, अगर हिल्स का कलर ब्राउन दिया है की के अंदर, दैट मींस कि वो ब्राउन ही मैप के अंदर होगी। सो दिस काइंड ऑफ मैप इज बेसिकली यूज्ड टू नो कि उसके अंदर कितने जो है वो हिल्स हैं, किस तरह की रिवर्स हैं, उन सबको कीज के जरिए जो है वो डिफाइन किया जाता है। Every map has certain keys because वही कलर्स जो मैप के अंदर इस्तेमाल होते हैं वही एज अ की जो है वो यूज किए जाते हैं टू टेल यू व्हाट द थिंग्स आर प्रेजेंट इन दैट मैप। इफ यू लुक एट दिस थिंग, अगर मैं इसमें से सब नाम मिटा देती हूँ, यू वोंट बी एबल टू फाइंड आउट कि आपका कौन सा सिटी किस जगह पर मौजूद है। फॉर दैट वी नीड पॉलिटिकल माइंड। सो बेसिकली हमने आज जो डिस्क्राइब किया वो ये कि हमारे पास थ्री टाइप्स के मैप्स हैं। वी हैव थ्री काइंड ऑफ मैप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल मैप, second is political map and third what it is, relief map। हम ये तीनों मैप यूज करते हैं टू डिफाइन अ कंट्री कि उसके अंदर हिल है, अगर हिली एरियाज है वो कहाँ है, अगर उसके अंदर सिटीज है वो कहाँ है, उसके प्रोविंसेस कितने हैं, ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ा कंट्री है उसमें स्टेट्स है तो उसमें स्टेट्स कितनी है, ये सारी चीजें हम किसके जरूर फाइंड आउट करेंगे, पॉलिटिकल मैप के जरिए। देन हम रिलीफ मैप की तरफ जाते हैं कि हमें उसकी हाइट, ठीक है, वो सतह समंदर से कितना ऊपर है, कितना नीचे है, ये सारी चीजें जो है हम किसके थ्रू जो है वो फाइंड आउट करते हैं, रिलीफ मैप के जरिए। बिकॉज इसके अंदर लाइंस के जरिए, इसके अंदर डायरेक्शन के जरिए हमें बताया जाता है कि ये चीज यहाँ पर मौजूद है और इतनी ज्यादा बुलंदी पर है, ये चीज यहाँ पर मौजूद है और वो इतनी ज्यादा बस्ती में मौजूद है, यानी वैलीज है, ये सारा कुछ हम रिलीफ मैप के जरिए जो है वो फाइंड आउट करते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। First of all, let me tell you what the latitudes are. Latitude basically क्या है? These are the horizontal lines, ठीक है। ये horizontal lines होती हैं, इनको हम क्या करते हैं, ये किसी भी मैप पर आपको नजर नहीं आएगी। आपको there are a certain maps जिनके अंदर जो है वो ये लगाई जाती है just to describe ग्रिड सिस्टम, ताकि आपको ये पता चल सके कि अगर हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास कौन सी डायरेक्शन आएगी, ठीक है, साउथ की तरफ। अब ये कि ये हॉरिजॉन्टल यानी कि जो है वो लाइंस है, इनको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड मेरिडियन बोलते हैं। अब इसमें क्या है, अगर आप देख सकते हैं हर जो है वो हम ग्रिड सिस्टम के अंदर, ये हम ग्रिड सिस्टम अगर आपको सिंपल फॉर्म में बताऊं तो ग्रिड सिस्टम बेसिकली इट्स लाइक दिस, ठीक है, ये इस तरह से है। अब इसमें क्या है कि अगर हम ये जो है वो जा रहे हैं, ये हो गया नॉर्थ वाली साइड पर, अगर हम नीचे वाली साइड पर आएंगे तो ये आ जाएगा साउथ, और अगर हम इसके दरमियान में ये जो लाइन है व्हाट इट शोज ईस्ट और वेस्ट जो है वो उसकी डायरेक्शन को जो है वो अब बताती है। प्लस इसमें ये क्या है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर इज बेसिकली लाइन विच सेपरेट्स यानी कि दो हेमिस्फीयर्स को अलग करती है। इफ यू लुक एट दिस थिंग, ये जो लाइन उन्होंने दरमियान में ड्रॉ की हुई है, ठीक है, ये जो मैप के अंदर ये जो लाइन जा रही है व्हाट इट इज कॉल्ड इक्वेटर लाइन। अब इस इक्वेटर लाइन को ये क्या, इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी जो है वो बोलते हैं। व्हाई, बिकॉज अगर हम यहाँ पर हर चीज जो है वो 0 डिग्री पे है। अब ये 0 डिग्रीज, देयर इज अ सर्टेन कंट्री जहाँ पर ये 0 डिग्रीज जो है वो आता है, वो कौन सा कंट्री है, दैट इज द ग्रीनविच इन इंग्लैंड। ग्रीनविच जो है वो उसका है इंग्लैंड के अंदर। वहां पर जो हमारे पास इंटरनेशनल डेट लाइन है वो क्या कह लेते हैं, एक तरह से हम 0 कर देते हैं। व्हाई, उसके अंदर अगर हम ऊपर मूव करेंगे, नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे, यानी कि इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड, इफ वी आर मूविंग टुवर्ड दिस साइड, तो हम क्या करेंगे, वी गेन
1 डे। यानी कि अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ मूव करते जाएंगे, हम इस तरफ ट्रैवल करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, हम एक दिन जो है वो बढ़ा लेंगे, यानी गेन कर लेंगे एक दिन। बट इफ वी आर मूविंग फ्रॉम दिस इक्वेटर टू दिस साइड, अगर हम साउथ की तरफ जो है मूव करना शुरू कर देंगे, तो व्हाट गोना हैपन इज कि हम इसके अंदर एक डे जो है वो लूज करेंगे। सो बेसिकली हम जो मैप में जो ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं, इट इज जस्ट टू शो यू, इट जस्ट टू टेल यू कि इसके अंदर किस किस्म की जो है वो यानी कि लैटिट्यूड क्या है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या है, प्लस उनका जो है वो आपको बेनिफिट क्या है, या बेनिफिट के अलावा उसका मतलब क्या है, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन का तो आप सबको पता आई होप के होगा। इंटरनेशनल डेट लाइन जैसे कि हम AM और PM यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह वो क्या है, हर एक कंट्री का आपको पता है कि टाइम डिफरेंस है, ठीक है। कुछ कंट्रीज यहाँ से 5 आवर्स जो है वो, हमारे पास टाइम अगर है वो 5 बज रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर 7 बज रहे हो, इस तरह से यानी कि कुछ घंटों का भी फर्क हो सकता है, कुछ मिनटों का भी फर्क हो सकता है। और वो फर्क क्यों है, क्योंकि हम स्फीयर के यानी कि हम अर्थ के ऊपर मौजूद है, और इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि जगह से जगह जो है वो फर्क होती है। अब ये जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड का मतलब क्या है कि ये देखिए, ये नॉर्थ से हर जो है वो हेमिस्फीयर उसके अंदर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर, और वो किस तक जाता है, 90 तक जो है वो जाता है, ठीक है, 90 तक जो है वो क्रॉस करेगा। सेम एज इट इज 0 से स्टार्ट करेगा और डाउन फॉल जो हमारे पास कहाँ तक जाएगा, 90 तक जाएगा। अब ये वाली जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस, अब ये इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन है, यानी कि इसको दरमियान से यानी कि जो है वो हम क्रॉस करते हैं, और यहाँ से अगर हम करते हैं तो भी वो क्या होगा, सेम चीज ही रहेगी। अब बेसिकली इनको जो है वो ग्रिड सिस्टम को हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपके पास ये जो है वो मैप। अब ये क्या इंटरनेशनल डेट लाइन है, 180 का एंगल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी इंटरनेशनल डेट लाइन, यहाँ पे 180 का दिया हुआ है। अब व्हाट यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्राइम मेरिडियन क्या है, 0। अब 0 क्यों है, क्योंकि इसी की वजह से हम डिफाइन कर पाते हैं कि यहाँ पर अगर दिन है, ठीक है, और अमेरिका में अगर रात है, तो वो क्यों है, ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है वो 0 है, ठीक है। जब हम 0 से आगे मूव करेंगे तो एक दिन जो है वो क्या करेंगे, एक हम गेन कर लेंगे, अगर हम पीछे मूव करेंगे तो एक दिन क्या होगा, हमारा लूज हो जाएगा। सो सेम एज कि अगर हम नॉर्थ की साइड पर ट्रैवल करेंगे तो हमारे पास जो है वो टाइम बढ़ता जाएगा, अगर हम साउथ की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास दिन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, प्लस वक्त भी जो है वो पीछे चला जाएगा। सो द इक्वेटर इज द लाइन, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है। ये क्या लाइन है, ये बेसिकली एक लाइन है लैटिट्यूड की, जो कि पूरी अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो घूमती है। आप इसको देखें, ये सारी जगह पर से गुजर रही है। व्हाई, इसमें क्या है, इट डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, कि हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो इसको जमीन को जो है डिफाइन करना इजी हो जाता है। उससे क्या होगा, उससे आपको पता चलेगा टाइम का डिफरेंस, टाइम का, वक्त का, टाइम का, उसके अलावा आपको कि किस तरह से एक दिन आगे जाएगा और एक दिन जो है वो पीछे आएगा, ये सब क्या है इसके अंदर मौजूद है। सो आफ्टर दिस हमारे पास आपको पता है कि हर जो है वो उसके 90, जैसे मैंने आपको बताया कि 90 पैरेलल हेमिस्फीयर जो उसके होते हैं, एक लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, सेम आंसर इसके जो है वो लॉन्गिट्यूड, इसमें एक में वर्टिकल लाइंस है और एक में क्या है जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल के लिए हम वर्ड लैटिट्यूड यूज करते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड में रेडियन, क्योंकि इसे टाइम को करते हैं, उसके लिए हॉरिजॉन्टल के लिए हम वर्टिकल यूज करते हैं, बिकॉज़ दीस लाइंस कम इन दिस वे। इन दोनों का मतलब बेसिकली ये क्या है, ताकि आपको मैप पे एक ग्रिड सिस्टम बना दिए। बेसिकली ये क्या है, ये इमेजिनरी लाइंस है, ये हकीकत में आपको इसके ऊपर नजर नहीं आ रही है, बट इफ यू लुक एट द अदर मैप जो कि आपको प्लेटफॉर्म में नजर आती है, उसमें आपको डायरेक्शंस बताने के लिए, आपको ये बताने के लिए कौन सी नॉर्थ पोल पे वाक़या है, कौन सी साउथ पोल पे वाक़या है, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए व्हाट वी डू इज कि हम उसके लिए जो है वो ये जो है वो मैप इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो फिर हाउ टू जो है वो स्टडी एग्जैक्टली जो है वो हम उसके लिए मैप जो है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हाउ टू स्टडी अ मैप, हम उसको मैप को स्टडी कैसे करते हैं, उसके लिए देयर आर सर्टेन थिंग्स। अब फर्स्ट क्या है, हमारे पास डायरेक्शन आती है। इफ यू लुक एट द मैप, अगर हम इसके ऊपर देखते हैं, ठीक है, इस मैप के ऊपर देखें, किसी भी मैप के ऊपर देखते हैं, तो हमें उसके लिए डायरेक्शन जो है वो जरूरी होती है। अब डायरेक्शंस तो हमें क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें पता चलेगा कि वो मुल्क जो है वो जमीन के ऊपर यानी कि हमारी अर्थ के ऊपर एग्जैक्टली किस जगह पर पॉइंट आउट किया गया, किस जगह पर मौजूद है, उसके लिए हमें क्या है, डायरेक्शन की जरूरत होती है। प्लस हमारी डायरेक्शन के साथ साथ ना सिर्फ हमें कंट्री का पता चलता है, सेकेंडली वी ऑल्सो नो व्हाट द क्लाइमेट वुड बी ओवर देयर, ठीक है। तो उसमें क्या है, हमारे पास डायरेक्शन कितनी है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अब ये 4 डायरेक्शन हमारे पास
मौजूद है। बट दिस इज बेसिकली रोज कंपास। इसको रोज कंपास हम क्यों कहते हैं? बिकॉज इसके अंदर ना सिर्फ, अब देखो अगर हम एक मैप को अगर इस तरह डिफाइन करें कि ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये साउथ पोल पे यानी कि सॉरी ये नॉर्थ साइड पे जा रहा है, ये साउथ पे जा रहा है, ये ईस्ट पे डायरेक्शन है, ये वेस्ट पे जा रही है, तो उसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि देखो हमारे पास बहुत सारी जगहों पे लिखा होता है नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट लिखा होता है, तो उससे हमें पता चलता है एग्जैक्टली उसकी लोकेशन कि एग्जैक्ट वो किस डायरेक्शन में वाक़ है, क्योंकि सिर्फ इन 4 डायरेक्शंस के अलावा भी तो डायरेक्शन है, यानी कि अगर कोई चीज दरमियान में है, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो उसको बोलेंगे, अगर इस यहाँ पर कोई आएगी तो क्या है ईस्ट साउथ, सॉरी ईस्ट साउथ बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से ये रोज कंपास हम बेसिकली यूज करते हैं एग्जैक्टली उस जगह की, उस प्लेस की, उस कंट्री की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर जो है वो मौजूद है। सेकेंडली हम जो है वो ग्रिड सिस्टम, अब ग्रिड सिस्टम का मैंने आपको बताया ये वाली जो है वो लाइंस साउथ, ये है हमारे पास ईस्ट और ये हमारे पास क्या है वेस्ट। अब ये लाइंस हम बेसिकली किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ताकि हम ये इमेजिनरी लाइंस है यानी हम ज़हन में इमेजिन करते हैं ताकि हमें इस मैप को स्टडी करना आसान हो जाए, इस मैप पे हमें बताना आसान हो जाए कि इस मैप में कौन सी जो है वो सिटी हमारे नॉर्थ में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हम नॉर्दर्न एरियाज बोलते हैं, ठीक है, अगर हम जाते हैं इधर पहाड़ी इलाकों की तरफ तो हम उनको बोलते हैं नॉर्दर्न एरियाज को। हम नॉर्दर्न एरियाज क्यों बोलते हैं? हम उसे एज एम नहीं बोलते, मतलब देयर इज रीजन, स्पेसिफिक रीजन है कि वो नॉर्थ साइड पर वाक़ है, ठीक है। अगर हम जाते हैं यानी कि साउथ की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसकी भी एक रीजन है कि हम साउथ की तरफ अगर जो जा रहे हैं चीज़ों को साउथ की तरफ, यानी कि जैसे आप थल वाली साइड पे जाते हैं वो साउथ में वाक़ है, तो क्यों चोलिस्तान ये सारी चीज़ें जो है वो साउथ में वाक़ है, उसकी हम साउदर्न पंजाब, ठीक है, नॉर्दर्न पंजाब क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उन डायरेक्शंस में जो है वो वाक़ है, और इनकी यही जो है वो एक वजह है कि हम इसके लिए ग्रिड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली उसकी लोकेशन जो है वो फाइंड आउट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहते हैं कि कराची जो है वो लोकेटेड कहाँ पर है, ऑलमोस्ट 20 डिग्रीज जो है वो हमारे पास जो है वो 25 डिग्रीज जो प्रेजेंट है नॉर्थ में और इक्वेटर पे 67 डिग्रीज पे वाक़ है, तो हम उसके लिए बेसिकली क्या करेंगे, तो हमारा किसमें हो जाएगा ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, यानी कि ईस्ट, ये प्राइम मेरिडियन की ईस्ट में जो है वो कराची जो है वाक़ है। अगर हम ये देखो ये ईस्ट की डायरेक्शन में, यानी कि जो इस डायरेक्शन में मौजूद है, तो ये ईस्ट मेरिडियन पे जो है वो हमारे पास मौजूद है। क्या बेसिकली है क्या, यानी नॉर्थ में भी है, ठीक है, नॉर्थ वाली साइड पे भी होगा और उसके अलावा वो किस में होगा, ईस्ट वाली साइड में, तो उसके लिए ईस्ट मेरिडियन में बेसिकली जो है हमारा कराची 25 नॉर्थ में वाक़ है और 67 डिग्रीज ईस्ट पे। अगर हम उसको यानी कि हम उसके ऊपर देखते हैं सिंपल इसकी यानी कि डायरेक्शन के लिए, इस डायरेक्शन से अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि वो नॉर्थ में 67 डिग्रीज है, सॉरी 25 डिग्रीज जो है वो नॉर्थ और 67 यानी कि इस साइड पर जो है वो ईस्ट में वाक़ है। उससे हमें पता चलेगा कि ये है वो कहाँ पर एग्जैक्टली उसकी लोकेशन जो है वो क्या है। अब कीज की बात आ जाती है, इफ वी टॉक अबाउट दिस, आपको यहाँ से जो है वो हम एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ, इधर इफ यू लुक एट दिस मैप, तो देयर आर सर्टेन कीज। अब उन्होंने देयर इज अ लाइन विद द डैश एंड अ डॉट, ये किसके लिए यूज की गई है? ये बेसिकली उन्होंने इंटरनेशनल बाउंड्री को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल की गई है। सो वी बेसिकली डिफाइन इंटरनेशनल बाउंड्री विद दिस की। ये की मैप टू मैप डिफर कर सकती है, हर मैप पे सेम की नहीं होती, हर मैप पे डिफरेंट की होती है, और उन्होंने अपने ही अंदाज से उसको जो है वो बताया होता है। इस तरह का जो है वो आपके पास एक बॉक्स होता है जिसमें क्या होता है, कीज लिखी होती है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर डायरेक्शन जो है वो किस जो कलर से दी गई है, और ये वाली अगर लाइन इसके अंदर मैप के अंदर शो हो रही है तो व्हाई वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सेकेंडली वी हैव, इफ वी हैव अ कैपिटल, ठीक है, तो उसके लिए स्टार है। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, तो उसके लिए क्या होगा, हम स्टार यूज करेंगे। फिर उसके बाद प्रोविंस है, उसके लिए हमने जो है वो ब्लॉक यूज किया, और मेजर सिटी के लिए उन्होंने डॉट जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। सो व्हाई वी यूजिंग दिस काइंड ऑफ, ये कीज जो होती है किसी भी मैप को एक्सप्लेन करने के लिए इजी होते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड वेयर द हिल्स आर, वेयर द रिवर्स आर, वेयर द सी इज, वेयर द कैपिटल इज, व्हिच इज द बाउंड्री लाइन, एंड प्लस which is the cities, उसको डिफाइन करने के लिए क्या है। फिर उसके अलावा if we typically look on the map of a city, तो उसमें क्या होगा, उसमें मॉस्क होंगे, उसमें हाउस होंगे, उसमें रिवर अगर आता है वो होगा, ऑल दीज थिंग्स जो है वो डिस्क्राइब की जाएंगी, कीज के जरिए की जाएंगी। उससे आपको पता चलेगा, क्योंकि अगर आप अपनी बुक पे देखते हैं और पेज नंबर 5
ठीक है। सो दिस इज बेसिकली क्या है, सिंबल उसके लिए क्या है, हम यूज कर मॉस के फॉर एग्जांपल, तो मॉस के लिए हमने सिंबल यूज कर दिया, वेल है तो उसको डॉट से हमने वो कर दिया, ब्रिज है तो उसको हमने ब्रैकेट्स के साथ, ठीक है, बिल्डिंग को हमने सिंपल रेक्टेंगल के साथ, देन रिवर है उसको ब्लू, जो एरिया के साथ रेलवे ट्रैक है तो उसको इस रोड वाला जो ट्रैक होगा उसके जरिए से। सो बेसिकली ये सारी चीजें जो है वो एक सिटी के बारे में जो है वो कीज दी गई है, सेम एज इट इज। अगर आप वर्ल्ड मैप देखते हो तो उसमें भी देना सर्टेन कीज, उससे आपको पता चलता है ये वाला एरिया जो है कहाँ है, और उसके अलावा आपको जो है वो स्केल भी दिया होता है। फॉर स्केल का मतलब ये होता है कि अगर हमने स्केल, ऑब्वियसली मैप के ऊपर हम नहीं बता सकते कितने किलोमीटर है, तो उसके लिए एक स्केल दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है। वो आप सिटीज के लिए यूज करते हो, लेकिन जब आप वर्ल्ड का मैप यूज करते हो तो उसके लिए स्केल बहुत बड़ा होता है, यानी इन थाउजेंड्स जो है वो स्केल जो है वो किया जाता है। उसके बाद यूजिंग एन एटलस, अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। व्हाट एटलस इज, एटलस जो होता है वो मैप्स की यानी कि जो है वो एक किताब होती है, उसके जरिए क्या है, इफ यू लुक एट, इफ यू हैव अ ग्लोब एट योर होम, ठीक है, अगर आपके पास इस तरह का ग्लोब मौजूद है तो उससे क्या होगा, यू कैन इजीली डिफाइन कि आपको उसके ऊपर क्या क्या चीजें मिल जाएंगी। उसके आप ऊपर इक्वेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको उसके ऊपर ग्रिड सिस्टम नजर नहीं आएगा, बट देयर इज अ सर्टेन साउथ नॉर्थ पोल जो है वो मेंशन किए हुए होते हैं। सेकेंडली उसमें क्या होता है, देन देयर इज अ, इज देयर एनी क्वेश्चन? और इंडेक्स में जो होती है एटलस जो होगा वो एक बुक है, ठीक है, इट्स बेसिकली बुक्स अबाउट मैप्स, ये आपको किसी भी बुक स्टोर से भी मिल जाएगी, ठीक है, आप परचेज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें एक इंडेक्स दी होती है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, देयर इज कंट्रीज नेम, ठीक है, हमारी दुनिया के अंदर टोटल हाउ मेनी कंट्रीज आर प्रेजेंट वो उसके अंदर जो इंडेक्स के अंदर दिए होते हैं। देन देयर इज गिवन द की, उसके अंदर की बताई होती है कि हर मैप की जो है वो की डिफर होगी, ठीक है। आई सजेस्ट कि यू गो टू अ बुक स्टोर, वहां पर जाकर आप क्या करें कि वहां पे जाके आप वर्ल्ड का मैप लें, ठीक है। अगर वर्ल्ड का मैप आपको समझना थोड़ा मुश्किल है तो दैट्स परफेक्टली फाइन, यू कैन गो एंड परचेज पाकिस्तान का जो है वो मैप लें, ठीक है, उसमें आप फिजिकल, पॉलिटिकल और रिलीफ मैप लें, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसमें जो है वो हमारे पास कितने, हमारे मुल्क के अंदर हाउ मेनी प्रोविंसेस वी हैव, ठीक है, हाउ मेनी कंट्रीज वी हैव, व्हाट आर द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, और इस तरह से आपको जो है वो उसको एक्सप्लेन करना जो है वो आसान हो जाएगा। और उसमें अगर माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, सी है, वोल्केनोज है और एनी अदर स्टफ, तो वो सारी चीजें जो है वो आपके लिए समझना आसान हो जाएगी, बिकॉज ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं, ज्योग्राफी के अंदर जो है वो आते हैं। और उसके अंदर बाकी सारे फीचर्स जो हैं वो सारे इसी तरीके से जो है फाइंड आउट हम कर सकते हैं। सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट मैप, ठीक है, मैप की हमने टाइप्स पढ़ी, फिजिकल, पॉलिटिकल, रिलीफ, प्लस जो है वो उसके साथ साथ हमने क्या किया, हमने साथ साथ उसकी जो है वो डिफाइन किया कि ग्रिड सिस्टम, इमेजिनरी लाइंस हम क्यों लगाते हैं, व्हाई वी यूजिंग डायरेक्शन, ठीक है, अगर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम करते हैं तो उसका क्या फायदा है, व्हाई वी हैव एन इक्वेटर, हमने नॉर्थ और साउथ में उसको जो है वो हेमिस्फीयर्स को क्यों डिफाइन किया गया है, ठीक है, व्हाट इज अ जीरो और लाइन जिसको हम जीरो जिसको कहते हैं वाई, उसकी के हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, ठीक है, हम जो है वो मेरिडियन से ऊपर और नीचे जाते हैं वो सब किस तरह से होता है। सो टुडेज योर होमवर्क वुड बी कि यू हैव टू डू ऑल द एक्टिविटीज एंड क्वेश्चन आंसर प्लस राइट डाउन ऑन योर पेज ऑन योर नोटबुक्स, प्लस आप इस बुक को जो है वो पढ़ें, सेकेंडली परचेज द मैप, ताकि आप घर पे आसानी से जो है वो मैप को वो पढ़ना, उसको समझना जो है वो सीख सकें। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, आई होप यू स्टडी वेल एट योर होम। अल्लाह हाफ़िज़।